Assalamu alaikum everybody. Hopes you're fine and enjoying good health. This is me, Sana Nasir Sheikh from the Scary Me group, and today we are here with a very important and interesting topic. And you know that Scary Me is collaborate and joins hand together with the Chughtai, and they are work for the women mental well-being. So we are here with the Dr. Aksha over here. She can introduce herself. She is a psychiatrist, and warm welcome to Doctor over here on our platform. Thank you so much, Can Sana. So, yes, my name is Dr. Aksha Taj. I'm a clinical psychology, psychopathologist, and psychotherapist. And I've done my master's from a French university, that is Paris Descartes. Okay, sounds great. So, as you know that, as we all know, that's very important is about the self-love. How can we love ourselves? Everybody that you know that we love our children, we love our parents, and there are other people we love that. But it's very difficult to define that how we can love ourselves. So, this term today we are going to discuss, and I think this is topic of the day. So how you can define this term? Okay, so first of all, Sana, a very common mistake that we used to make is we used to get Mm, confused between self love and self care. What yeah. we need to understand is that self love is something different and self Mm-hmm. care is something different. When we talk about self love, we talk about our emotions. It's more about the love, the deep affections that we have for ourselves. Whereas when we talk about self care, it's more about the actions that we can do in order to take care of ourselves, to take care of our health, our mental health, our physical health. So self care something different and self love is something different. But obviously both are, there is a link obviously between both. So more will be self loving toward ourselves, more we are going to, make efforts to care about ourselves. Mm, fine. So most of our this can we differentiate between the self love if somebody wants to do this self love with ourselves. So how can we define this term? Self love means the affection that you have for yourself, Mm, how okay. understanding you are for Mm, yourself, how, the affection that you have for you. This is what we mean by mm, self love. okay. Whereas self care, it's about what you can do for yourself. So it's more Mm, about mm, actions. Whereas self okay. love, we don't expect any actions. It's just about, the opinion that you have about your self-worth, your self-esteem, your self-confidence. That comes under self Mm, love. Whereas self care, it's more about what you can do for yourself. So we need to have actions for that. okay. So how many people would you like to chat with during a day in your lifespan जो आप करते हो daily basis पे? देखिए, it's really variable. Mm, It's not more about the number, but it's more about the quality. If we are chatting to okay. people who are toxic people, who are Hmm. decreasing our self worth, जो हमें महसूस कराते हैं कि we are not worth it या हमसे बात करने का फायदा नहीं, तो Hmm. obviously there is no point. So more than the number, it's about the type of people that we have in our surrounding. It's better to have few people in our surrounding, but they are good people, they are supportive, they are caring, they are going to support us. Whereas if we have lots Hmm. of people, maybe they are toxic people, they are people that we are, they are going to develop a feeling of comparison in us, so we'll Hmm. start comparing ourselves to them. देखा वो कितना अच्छा है, वो कैसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं. Hmm. So that is going to decrease our self confidence, our self worth. So, those things are going to impact. So, we need to more focus not on the quantity but on the quality. So, make sure the Okay. people that you are talking to are nice. Make sure that these Hmm. people are supportive. They are going, they are going to change whatever you are feeling into a drive. आपको मोटिवेट करेंगे, आपको बूस्ट करेंगे कि कर Hmm. लो, ऐसे कर लो. तो it should be someone who is going to make positive changes into you
instead Fine. of talking to a person and after you feel really bad, you feel that ये कितना अच्छा है, मैं तो ये भी नहीं कर सकती, Hmm. because often we talk to people and after these people they have very higher and pumped self esteem, तो वो बहुत बढ़ा चढ़ा के अपनी बातें करते हैं और उससे ये Hmm. होता है कि we started feeling really एक सेल्फ पिटी आ जाती है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता या कर सकती. तो we Hmm. need to be very careful about the people we are talking to. अच्छा जी, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताऊं कि अगर हम लोग बात कर रहे होते हैं सेल्फ लव के बारे में, तो सबसे पहले अगर बाहर के लोगों की तो हम बाद में बात करते हैं कि आपकी अपनी फैमिली जो टर्म्स होते हैं, वहां पे अगर ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आ जाएं या मतलब इस तरह की कोई बात आ जाए, तो हाउ कैन वी अवॉइड दिस? ओके, ऑब्वियसली ये तो जैसा आपने पॉइंट आउट किया सना, इट्स पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड यस। यानी कि हम पेरेंटिंग से ही देख ले, जी जी। पेरेंट्स स्टार्ट ही ये करते हैं कंपैरिजन से. अब यस। बेशक वो बच्चे हो जाए, बड़े हो जाए, कोई भी हो जाए, हम हम्म। कंपैरिजन करने लग जाते हैं. पेरेंट्स जी बहन जी। भाइयों में कंपैरिजन करते हैं, कजन्स में करते हैं, स्कूल हम्म। वाले बच्चों में करते हैं. सो दिस आई थिंक दैट्स द बेस व्हाई वी आर नॉट हैप्पी इन आवर लाइफ, क्योंकि हमें सिखाया यही जाता है कि हम्म। हमारा खुद का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड दूसरों के हिसाब से बनाए जाते हैं. एंड दैट जी। इज सो रॉन्ग, because we are going to struggle our whole life discovering कि आखिरकार हम हैं कौन, what are our likes and dislikes. तो ये कंपैरिजन वाला जो प्रोसेस है ये इंतहाई गलत है. और आजकल की जो हम्म। द पेरेंट्स दैट आई यूज्ड टू मीट इन फैमिली थेरेपी, इन कपल हम्म। थेरेपी, I used to stress a lot on that we need to be very careful about that. देखिए, वी नो कि हर कोई अलग अलग होते हैं, वो बेशक जी। कॉग्निटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाए, वो बेशक इमोशनल पॉइंट ऑफ हम्म। व्यू से ही हो जाए. इस यूनिकनेस को लेके चलना ये हमारा फर्ज है एंड समझना कि एवरीवन is going to have his or her own strengths और कोई नेगेटिव पॉइंट्स भी होगी, लेकिन उस पे कंपैरिजन लाना बहुत ही गलत होता है. अब आप बड़े हो गए, आपका बचपन गुजर चुका है, वो कंपैरिजन का आपके अंदर है फैक्टर, लेकिन अब जी। you should start getting conscious about it. You should start avoiding people in your surrounding who are just keep on comparing you to someone else. आप अगर खुद में आपको पता हो कि ये कंपैरिजन का जो प्रोसेस है ये मुझे डिफाइन नहीं कर रहा, तो ऑटोमेटिकली जो अगले की भी बात होगी आप उस तरह से आप उसके लिए इमोशनली टच नहीं होगी. जी जी। Whereas अगर आपको आपके अंदर से ये शुरू से वो चीज़ रची हो कि यस आप कंपैरिजन से ही आपका पता चल सकता है, तो obviously हम्म। when now with the passage of time, now that we have so much many platforms who are promoting that self care, mental health, तो अब तो हमें सही। पता चल रहा है ना कि हमने अपना आप समझ के अपनी जिंदगी के पर्सपेक्टिव लेके आगे जाना है. तो आई थिंक यू शुड जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, खुद समझना कि ये वी शुड स्टॉप कंपेयरिंग आवरसेल्फ टू अदर्स. एंड वंस वी आर गोइंग टू गेट दैट पॉइंट दैट हमने ये खत्म करना है, देन we are going to stop listening to people who are advising us to do that और दूसरों को मद्देनजर रखते हुए, तो वो obviously ज्यादा impact करेंगे. Okay, Dr. Aksha, we have a question over here right now. So, what effort can we make to start doing self love? As mothers are mostly selfish, they never think about for them and eventually lead to depression. Yes. Unfortunately, that's a really common question. And the Hmm. problem that we have, Sana, is that in our culture, we got confused between self love and selfishness. सेल्फ लव या Hmm. सेल्फ केयर, ये सेल्फिश होना बिल्कुल भी नहीं होता. एट द ऑपोजिट, आप देखिए जितना अपने लिए केयरिंग और लविंग होगी उतना आप दूसरे का भी ख्याल रख सकते हैं. Since the Sahi. beginning, I think, especially in our Pakistani culture, we are stressing a lot, especially for women, कि औरत Hmm. कुर्बानी का नाम है, औरत माँ Sahi. होती हैं, औरत के पैरों तले जन्नत है, तो उसने अपने आप को कुर्बान कर देना है. ये चीजें, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं. ये चीजें ऑब्वियसली जब हमें फीलिंग आती है, हमें अपने न्यू बॉर्न पे गुस्सा आ रहा होता है कि रो लिया, Hmm. दूध भी पिला दिया, डायपर भी चेंज कर लिया, फिर भी रो रहे हैं, तो व्हाट्स द इशू. ये जो बातें होती हैं जो हमारे इंटरनल हमें खातियां होती हैं, वो
डेवलप करेंगे गिल्ट की फीलिंग कि हम्म, माँ तो ऐसे नहीं हो सकती. हाउ इज दैट पॉसिबल कि मैं अपने बच्चे को छोड़ के आराम से 10 मिनट, आई वांट टू टेक अ गुड शावर, आई वांट टू गो टू द पार्लर, हम्म, आई वांट टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. ये तो फिर आप तो बहुत सेल्फिश मदर हैं. तो आपकी जो जी, आपके अंदर जो ममता की वो एक इमेज बनाई हुई थी वो तो फिर बिल्कुल आपने खत्म कर ली ना. तो ये गिल्ट होते सही, हैं. आपने स्पेशली व्हाट आई एम गोइंग टू एडवाइस टू new mothers is even those who are expecting, or the young ladies who plan to have kids or to get into a relationship. First of all, understand कि आपके लिए माँ होने की डेफिनेशन क्या है. माँ होना क्या होता है. देखिए, माँ सबसे पहले एक इंसान है. हम्म, इंसान के अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं. इसमें कोई गिल्ट क्रिएट करने की बात बिल्कुल भी नहीं है कि आप तंग आ रही हैं अपने बच्चे को संभाल संभाल के, तो आप गिल्टी फील हम्म, करने लग जाएंगी कि मैं कैसे तंग आ सकती हूँ, मैं क्या अच्छी माँ नहीं सही, हूँ. आपको सिर्फ समझना है कि देखिए, मैं भी माँ होने से पहले एक इंसान हूँ. मैं obviously the process of motherhood is, it's a roller coaster. हॉर्मोनल पॉइंट ऑफ व्यू हम्म, से, फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ये एग्जॉस्टिंग प्रोसेस होता है ना. और इसमें हमारी सोसाइटी ने बहुत हाई स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए होते हैं. हम्म, और आई थिंक टू सम एक्सटेंट कहीं ना कहीं अब ये जो हमारी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें भी हम बहुत ज्यादा लोगों को देखते हैं जी, अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है, माँ जी बिल्कुल परफेक्ट बॉडी, हम्म, परफेक्ट फेस, और वो, हम्म, तो हमें एक गिल्ट क्रिएट होता है कि जब ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकती हैं. और वही जैसा आप कह रही हैं ना, कंपैरिजन जी, वाला, जी, क्योंकि हमें शुरू से ही कंपैरिजन सिखाया होता है. तो ये और हमें गिल्ट और स्ट्रेस की तरफ ले आते हैं, जो कि स्ट्रेस एंग्जाइटी में चेंज हो जाएंगी, और एंग्जाइटी हम्म, लॉन्ग टर्म डिप्रेशन में चेंज हो जाएगा. आप अभी भी जिसने भी हमें ये सवाल भेजे, आप पहले खुद सोचे जी, जी, कि आपके लिए माँ होना क्या है. सही, व्हाट डज इट मीन टू बी अ मदर. ठीक है. उसके देखिए हर चीज के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं. आपने दोनों को इवेल्युएट हम्म, करना, और कई टाइम पे अच्छी अच्छी उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट आते हैं, और कई टाइम पे नेगेटिव आते हैं. लेकिन आपने ये याद रखना है कि जब तक आप ठीक है मेंटली, सही, फिजिकली, तब तक आपका बच्चा भी ठीक है. देर इज नो पॉइंट कि आप खुद को इतना एग्जॉस्ट और ड्रेन कर दे कि एट द एंड खुदा ना खास्ता आप कोई मेंटल इलनेस में चली जाए, डिप्रेशन में चली जाए, तो देन ऑब्वियसली आप और भी ज्यादा वो हो जाएंगी. फिर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आपके लिए. हम्म, तो इट्स बेटर टू रिएक्ट राइट नाउ एंड टू रीथिंक अबाउट योर डेफिनेशंस. और फिर आप उससे लेके चले, अब मुझे पता है कि मेरे लिए माँ होना ये है, तो अब मैं ये चीजें अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करूंगी. और बल्कि आप सही, उन्हें स्केजुअलाइज करें, आप प्रॉपर अपने एक स्केजुअल बनाएं कि अभी आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई किड, बट एक टाइम है दिन में 2-3 मोमेंट आप अपने ऐसे रखें जहां आप खुद के लिए हम्म, इंजॉय कर रहे होते हैं. क्योंकि सना सेल्फ केयर में एक चीज होती है, वो होती है नियत. हम अक्सर लोग कहते हैं ना, बस ये बात ले लिया तो ये सेल्फ केयर में ही है, बाहर वॉक जी, कर रहे हैं तो ये सेल्फ केयर में ही आ रहा है. सेल्फ केयर में द इंटेंशन मैटर्स अ लॉट. देखिए, फिर तो ऐसे इंसान सांस भी लेता है, फिर हम्म, सांस लेना सेल्फ केयर में तो नहीं आता ना. द इंटेंशन दैट आई सही, एम गोइंग टू डू समथिंग एंड इट्स गोइंग टू बी फॉर माई सेल्फ. तो मैं अभी जो करने जा रही हूँ इट्स फॉर माई सेल्फ, उसमें मैं अपना ख्याल रखूंगी. तो जब आप अपने जहन में ये चीजों को वर्बलाइज कर लो और वोकलाइज कर लेना, ये हम्म, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं. सही. Okay, next question is about how could you simplify your life and focus on what is the most important? देखिए, to in order if we want to simplify our life, we just Hmm, need to manage our time and our space. The problem fine. that we are facing right now is that we are coming in an era where we are really modern. ठीक है. ऑब्वियसली Yes. हमारी जो फैमिली की, आपको पता है, इमेज थी, फैमिली की जो जी, जी. रोल्स थे, वो सारे चेंज हो गए. पहले जी बहुत एक ट्रेडिशनल जो हमारा माहौल था जी, Hmm, बाप जाते हैं कमा के लाते हैं, जो अम्मियाँ hmm, होती हैं वो घरों में बैठ के बच्चों की तरबियत देखती हैं और घर को देखती हैं. तो इस तरह से जी, रोल जी. बहुत डिस्पैच थे और कोई भी अपनी स्पेस में नहीं इंटरफेयर करता था. अब हमारे रोल बहुत मिक्स्ड हो गए हैं. मदर्स फादर्स दोनों Hmm, काम करते हैं. मदर्स फादर्स दोनों को बच्चों की तरबियत में पार्टिसिपेट करना पड़ता है. तो हमने क्या करना है, वी नीड टू, जो भी हम, पहले तो खुद के साथ आपने डिफाइन करना है कि आपके रोल्स
क्या हैं। दूसरा, फिर आपकी ज़िंदगी में जो भी रिलेशनशिप है, बेशक आपके हस्बैंड हो, आपके हम्म पेरेंट्स हो, आपके बहन-भाई हो, उनके साथ आपने अपना रिलेशनशिप की सही तरह आपने बताना कि मेरा रोल ये है, आपका रोल ये है। अब हमारा मसला ये होता है कि हमने रोल जी जी डिफाइन नहीं किया होता है, स्पेशली हमारी सोसाइटी, जो कि हम अभी थोड़े से वेस्टर्न कल्चर की तरफ हम्म जा रहे हैं, लाइक एट द सेम टाइम वी वांट टू कीप आवर कंजर्वेटिव एंड रिलीजियस कल्चर। तो हम बिल्कुल वो एक किस्म का दो कश्तियों पे सवार, ना इधर के ना उधर के। तो वी हम्म जस्ट नीड टू रीडिफाइन व्हाट वी वांट। ठीक है, हमारा रोल ये है, हम ये चाहते हैं आप अपने पार्टनर से, अपने स्पोर्स से इन बातों को अच्छी तरह से क्लियर आउट करें, कम्युनिकेट करें। सही हमारा मसला ये होता है कि कम्युनिकेशन नहीं होती, क्लैशेस से हम डरते हैं, तो हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं कि जी कोई बात ना हो, थके हुए हैं, ये हैं, तो बस जैसे गाड़ी चल रही है चला लेने दीजिए। लेकिन इससे मसला होता है कि देयर इज अ टाइम, देयर इज अ पॉइंट वेयर वी गेट हम्म एग्जॉस्टेड, और उससे फिर जी इट्स एन ओपन डोर टू मेंटल इश्यूज। उससे आप बर्नआउट का भी हम सामना कर सकते हैं, हम डिप्रेशन का भी कर सकते हैं, एंग्जाइटीज इशू बहुत कॉमन हो जाते हम्म, हैं। तो आपने अपना टाइम मैनेज करना है और अपनी स्पेस मैनेज करनी है। हम क्या सही करते हैं कि हम कुछ शुरू करते हैं, हमें इतना गिल्ट, हम काम पे होते हैं तो हम घर के बारे में सोचते हैं, घर पे होते हैं तो काम के हम्म बारे में सोचते हैं, तो वी आर नॉट प्रेजेंट एट द मोमेंट। हम्म और वो उसी चीज का स्ट्रेस और गिल्ट ले लेके ना वी कांट एंजॉय द मोमेंट। तो we just need to simplify our life by understanding the different spaces that we have and to manage our time. We just need to do that. जब हमें पता चल जाए ये मेरे काम का वक्त है, इसमें मैंने सिर्फ काम पे फोकस करना है, हम्म घर आके मैंने घर की जिंदगी को एंजॉय करना है, तो बिलीव मी आपकी वो जो हम्म है ना स्ट्रेस, आपको एकदम से एक स्ट्रेस रिलीव एक्टिविटी टाइप हो जाएंगी कि घर पे घर की चीजों को करना है, काम हम्म, पे काम की चीज। काम से आप निकल गए हैं, आपने काम की बातें और काम की सोचें वहीं छोड़ देनी है, घर पे आके सही अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय करना है। ये स्विच सही करना ना बहुत ज्यादा लाजमी हो जाता है। सही। ओके, इन योर लाइफ हु इंस्पायर्स यू मोस्ट? अच्छा, हमारी जो जिंदगी में इंस्पिरेशन, जी जी। सना, व्हेन वी टॉक अबाउट इंस्पिरेशन वी टॉक बेसिकली हम्म अबाउट अ ड्राइविंग फोर्स। सही। इंस्पिरेशन क्या होती है? इंस्पिरेशन होती है कि इट्स अ प्रोसेस हम्म, जहाँ हम मेंटली अपने आप को स्टिमुलेटेड फील करते हैं, हमें लगता है कि सही। ये एक जज्बा क्रिएट हो रहा है हमें कुछ हम्म करने का। तो इंस्पिरेशन देखिए, हमारी जो ज़िंदगी में इवेंट्स वगैरह होते हैं बहुत वेरिएबल होते हैं, हर किसी के अपने होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो सही। हम देखते हैं हमारी सराउंडिंग में, इट्स ऑफन स्टार्ट विद फैमिली। ठीक है, आप बच्चों हम्म से पूछ लो, दे वांट टू कॉपी। इट कुड बी पेरेंट्स, इट कुड बी, अगर जॉइंट फैमिली में सिस्टम सिस्टम में रहते हो तो हो सकता है कोई चाचा, कोई खाला, कोई ऐसी चीज़ जो उन्हें लगता है थोड़ा सी हटके है, और अकॉर्डिंग द पर्सनैलिटी दैट द चाइल्ड इज स्टार्टिंग डेवलपिंग, उससे ज़्यादा अट्रैक्शन होगी एक बंदे को सही। लेकर। तो उस तरह से इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद फैमिली। ऑब्वियसली जितना आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आप स्कूल जाने लग जाते हैं, जी कॉलेज, जी। यूनिवर्सिटी, तो यू स्टार्ट, ऑब्वियसली आपके गोल्स चेंज होते रहते हैं, तो वो इंस्पिरेशन भी चेंज होती रहती है। लेकिन इंस्पिरेशन आपको वहाँ मिलेंगी जो आपके अंदर एक फोर्स क्रिएट हम्म, करती हो, ड्राइव क्रिएट करती हो, आपके अंदर कुछ चेंज करने का वो एक जज्बा पैदा करती हो, वहाँ उसे हम इंस्पिरेशन कहेंगे। सही। Okay, one word that you can define yourself. What is the difference between you and the dream life? आई In थिंक द one word, डिफरेंस, just इट्स फियर। fear. फियर, यस, Oh, वी आर स्कैर्ड टू चेंज। हम चाहते तो बहुत oh, चीजें हैं, लेकिन जी हम जी। अपनी कंफर्ट जोन से निकलना भी नहीं चाहते। हम्म तो वी वांट टू अचीव मैनी न्यू गोल्स, वी वांट टू हैव अ सर्टेन हम्म, लाइफ, लेकिन हम इतना डर जाते हैं ना, जैसे जी जी। हमारे कल्चर में ज्यादा हम डरते हैं कि फेलियर से डरते हैं कि अगर हम ना कर पाए तो बेहतर है कि आप अटेम्प्ट ही ना करें, ताकि सारी हम्म जिंदगी वो ख्वाब ही रहे। सो a dream, it's always a possibility, whereas if you attempt and you are not able हम्म, to achieve that, it means कि आप में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। तो हम खुद सही। को पुश करने से थोड़ा सा डरते हैं, और जिस कंफर्ट जोन में हम बैठे होते हैं ना, उससे कहीं ना कहीं हम निकलना नहीं चाहते। हम्म तो इसके पीछे हम अपनी ड्रीम लाइफ को थोड़ा सा कुर्बान कर देते हैं,
and we prefer to हम्म, stick to our normal routine life. We don't drive us, हम अपने आप को वो इंस्पिरेशन ही नहीं लाते कि हम कुछ चेंज कर सके. हम कहते हैं चलिए रिस्क ही ना लिया जाए कुछ चेंज करने का. और वो शायद हमारे शुरू में जैसा आप कह रही हैं ना, वी यूज टू कंपेयर जी जी, आवर सेल्फ टू अदर पीपल. तो उस हम्म, कंपैरिजन की वजह से हम फिर कहते हैं कि वो तो कर सका है, लेकिन अगर मैं ना कर सकूं हम्म, तो फिर बेहतर है, तो फिर इसका वाकई ये मतलब होगा कि आई एम लेस बेटर देन दैट पर्सन. तो ये तो फिर हम्म, आपकी सेल्फ एस्टीम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ वर्थ सारा कुछ बिल्कुल ब्लास्ट हो जाएगा. तो इसके पीछे सही, फिर हम किसी चीज को हिलाते ही नहीं है, और जहां हम हम्म, होते हैं वहां ही आराम से हम अपना गुजारा कर लेते हैं. सही. अच्छा, इसमें हम लोग अगर कोई टारगेट्स या गोल सेट करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं? कोई देखिए एक स्पेसिफिक तो टारगेट होता है? स्पेसिफिक पहले ही बिल्कुल आपको सोचना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कि आप चाहते क्या है. क्या सच में मैं ये चाहता हूँ, या मैं सिर्फ दूसरे की तरह करना चाहता हूँ. हम्म, क्योंकि that's the problem that we have with comparison. We don't the problem that we have is कि हमने अपनी जिंदगी को अपनी पर्सपेक्टिव से कभी देखा ही नहीं होता. हमारे लिए जिंदगी सही, क्या है, हमारे लिए सक्सेसफुल होना क्या होता है, हमारे लिए हम्म, कामयाब होने का मतलब क्या होता है. ठीक है, सो आपके लिए शायद डेफिनेशन और हो, मेरे लिए शायद डेफिनेशन और हो. For some हम्म, people it's going to be related to money, for some people it's going to be related to having a family, having kids. For few it could be related to professional development, for few it could be related to spiritual aspect. So it's really variable. हमने पहले खुद समझना है कि हम खुद अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं. Once we have decided, once we are clear with that definition, फिर हम रियलिस्टिक गोल सेटल कर सकते हैं. और रियलिस्टिक गोल देखिए, हमारा मसला ये होता है कि हम बहुत ना बेसब्रे हो जाते हैं. हम चाहते हैं कि एक चीज बस हम्म, सोच ली है, बस अब वो जल्दी से हो जाए. देखिए, when we talk about mental health and when we talk about changes in terms of emotional life, cognitive life, तो उसमें आपको फिर थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा. मैं आई यूज टू से दैट इट्स एग्जैक्टली जस्ट लाइक व्हेन यू आर सिक, व्हेन यू आर इल. आप दो हम्म, तीन दिन आपको जुकाम होते हैं तो आपको 7 दिन की एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है. तो यानी कि जी, बीमारी 3 दिन की, लेकिन ट्रीटमेंट 7 डेज का. इट्स द सेम थिंग व्हेन इट सही, कम्स टू मेंटल हेल्थ. ये तो नहीं होता कि आपने 2 दिन डाइटिंग कर लिया, अब जिंदगी भर आप जंक हम्म, फूड खाती रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो इट्स ए लाइफ टाइम प्रोसेस. ये हमें अपने गोल सेटल करने पड़ते हैं और फिर उन्हें रिवाइज करना पड़ता है. आफ्टर 1-2 months वी नीड टू चेक कि अब भी ये मेरे करंटली डिफाइन मैं कर सकती हूँ इन गोल्स को, या थोड़े से चेंज करने की ज़रूरत है. हम अपने गोल्स अपनी ज़िंदगी के हिसाब से नहीं चेंज करते. हमारे जहन में होता है, अगर आप हम किसी से भी आप जाके पूछे कि आपकी ज़िंदगी का गोल क्या है, तो एक बहुत लंबा चौड़ा आपका एक सवाल निकलेगा, जी मैं जी, तो ये करना चाहता हूँ वो. नो, टाइम टू टाइम हमें देखना पड़ता है, जी अभी तो मेरा गोल सिर्फ ये है. तो हम बहुत ही वो आपको पता है दूर दराज की सोचने लग जाते हैं कि ये हो. लेकिन वी नीड टू सेट वेरी रियलिस्टिक गोल, क्योंकि जब वो बहुत, देखिए टाइम मैटर्स अ लॉट. किसी चीज में आपको इफेक्टिव वो तभी होगी जब वो काम करेंगी. अगर आप बहुत टाइम लॉन्ग स्पेन डाल दीजिए उस टाइम का, तो वो इफेक्टिव नहीं है. तो ऑब्वियसली फिर आपका ख्वाब वो बीच में ही आप छोड़ देंगी. लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप उसे ब्रेक डाउन करके करें, तो आपकी मोटिवेशन भी रहेंगी, क्योंकि आप देखेंगे कि देखिए जो पहला गोल मैंने सेट किया था वो तो हो गया, अब दूसरा क्या है. तो आपकी मोटिवेशन, आपकी इंस्पिरेशन और आपकी सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम, वो सारा कुछ बढ़ता जाएगा. सही. अच्छा, इसमें बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको कहते हैं कि ये आप स्टेप उठाने जा रहे हैं, आपको इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, मतलब डिमोटिवेट होता है. तो फिर वो एक अंदर का जो होता है कि आपके अंदर की मोटिवेशन होती है, आपको वो निकालनी पड़ती है. उसके लिए आप क्या कहती हैं कि ये कितना पॉज़िटिव एटीट्यूड शो करती है हमारे अपने ऊपर, जब आपको सब तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा हो, एक न्यू देखिए, प्रोजेक्ट के ऊपर? एक न्यू प्रोजेक्ट, देखिए पहले तो वही बात, हुँ, पहले तो आपने खुद देखना है कि मैं ये कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती. ठीक है. सही. दूसरी, एक एक दफा आपने ये सेट कर लिया कि ठीक है मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ, आई हैव द पोटेंशियल टू डू इट एंड हुँ, टू रीच दैट गोल. फिर आप देखिए वही बात है कि यू नीड टू फिल्टर द पर्सन्स दैट आर इन योर सराउंडिंग. Toxic हुँ, people would never want you to climb the social ladder, the professional ladder, जो भी है हुँ, हो जाए. Whereas people who loves you, who cares of you, वो फिर भी आपको pro
दिखाएंगे कि अच्छा मुझे लगता है कि आप यहाँ तक कर हम्म, सकते हो, यहाँ तक आप नहीं कर सकते। तो वो शायद आपको रीएवैल्यूएट करवाए आपका गोल, लेकिन आपको पूरा डिमोटिवेटेड नहीं करेंगे। Whereas जो सही। टॉक्सिक लोग होते हैं वो आपको बिल्कुल ही ऐसे दिखाते हैं कि जैसे आप तो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं हैं और आप बिल्कुल भी हम्म, नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही हम्म, लाजमी होता है कि फिल्टर करना कि आपके इर्द गिर्द कैसे लोग हैं। और हमारा सही। प्रॉब्लम ये है कि हमने कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं, स्पेशली इन आवर सोसाइटी, आवर पाकिस्तानी कल्चर हम्म, अनफॉर्चुनेटली, जहाँ आपने ये सुना होगा अपने बड़ों से, जी करना पड़ता है, ऐसे लोगों से जी। रखनी पड़ती हैं। हमारे वो हम्म, बहुत एक ऐसा है कि लेक ऑफ चॉइस, वी हैव टू डू इट, ऐसे कहीं नहीं कॉम्प्रोमाइज, होता। वी कॉम्प्रोमाइज, कैन से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज। बिल्कुल। हम्म, तो ये बहुत ही गलत हो जाता है। ऐसे कहीं भी नहीं है कि फोर्सफुली आपको किसी से अपनी बातचीत रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये लाजमी है इस माशरे में रहने के लिए, ऐसे करना पड़ता है। सही। देखिए, जहाँ शुरू से आपकी परस्पेक्शंस को ही वो डिस्टॉर्टेड तरीके से लाया जाए, वहाँ गलत हो जाता है। फिर सही। आप कभी भी उस तरह से उस प्रोजेक्ट के साथ, उस गोल के साथ सही तरह नहीं चल सकते। तो जस्ट कीप इन माइंड कि एक पहले आप क्या चाह रहे हैं, और दूसरा फिल्टर करना कि आपके आसपास के लोग वाकई कौन। और देखिए, आपको फील हो भी हम्म, जाते हैं, क्योंकि वी हैव दैट सेंस। अल्लाह ताला ने ये ह्यूमंस में डाला हुआ है कि हमारी जो ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो इतनी होती है कि हम लोगों की बातों को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत नेचुरली हम एनालाइज कर लेते हैं और हम समझ लेते हैं। जैसे कोई आपको देख रहा है, आपको फील होता है कि कोई आपको किस नज़र से देख रहे हैं। कोई आपको जी वैसे बिल्कुल। देख रहा है क्योंकि आप गुजर रही हैं, हम्म, कोई हम कहते हैं वो आपको फील हो जाता है, क्योंकि जी। हमारी जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो इतनी है कि वी कैन डिटेक्ट द बॉडी लैंग्वेज, हम्म, लोग कितनी देर हमें कैसे देख रहे हैं, तो वो हमें फील हो जाता है। तो आप खुद पे भी थोड़ा सा ट्रस्ट करें। और अगर आपको फीलिंग आ रही है, वो जिसे हम साइकोलॉजी में तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है सिक्स सेंस में, लेकिन वो हम्म, जैसे कॉमन सेंस में हम कहते हैं अपनी एक गट फीलिंग को आप उस पे भी करें। गट फीलिंग बेसिकली होता यही है कि आपकी जो कोग्निटिव स्किल्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं, आपकी जो जिंदगी में इवेंट्स हुए होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको इतनी कैपेसिटी और इतनी कॉम्प्रिहेंशन दे देते हैं कि अपनी सराउंडिंग्स को कैसे डील करना है आपने। तो अगर आपको फील सही। हो रहा है कि एक इंसान मुझे अच्छी गाइडेंस नहीं दे रहा, मुझे सही तरह से, मुझे मेरे लिए सपोर्टिव नहीं है, तो आप बिल्कुल उनसे ना मिले। कोई ऐसी मजबूरी नहीं होती, मजबूरियां हम खुद ही अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं। सही। अच्छा जी, पीस ऑफ माइंड की बात हो रही है यहाँ पे, सेल्फ केयर की बात हो रही है, सेल्फ लव की बात हो रही है। तो वो यू थिंक कि अगर आपको पीस ऑफ माइंड आपके अपने के लिए करना है तो आप वो उस पे कैसे उसको मैनेज करते हो? देखिए, पीस ऑफ पीस माइंड ऑफ आपके माइंड अपने के लिए इन द खुद के लाइट ऑफ सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव। देखिए, पीस ऑफ माइंड तो वही होगी ना कि जब हमें पता है हम क्या चाहते हैं। ठीक है, हम्म, हमें खुद का पता है, तो और हमें खुद का पता है तो हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं। सही। पीस ऑफ माइंड आपको तभी मिलेगी व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक है, हमारे फाइन। यहाँ अनफॉर्चुनेटली सिंस चाइल्डहुड वी आर, आई एम श्योर यू हैव लिसन टू सेंटेंसेस लाइक कि पहले दूसरों का ख्याल रखना है, दूसरों का बिल्कुल। करना है। अ, सिखाया जाता है, ठीक है, कि डिश में अगर थोड़ी सी रह के तो देखिए कोई और ना ले रहा हो, तो जी जी। अपने आप को, ये हमने जो शुरू से एक बहुत मेजर मिस्टेक हमसे हुई है इज टू टेक दोज टू टर्म्स ऑफ सेल्फिश एंड सेल्फ केयर को हमने इकट्ठे ही डाल दिए हैं। बट इट्स देयर इज अ हम्म, ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, सेल्फिशनेस जी। तो वो होती है कि आप अपने इंटरेस्ट के लिए दूसरे का नुकसान कर दें, वेयर सेल्फ केयर यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग बैड टू द अदर पर्सन। ठीक है, सेल्फ केयर वो होगी कि आप पहले खुद का ख्याल रखेंगी, you'll टेक टाइम फॉर योर सेल्फ। जितना आप खुद का ख्याल रखेंगे, देखिए खुद का ख्याल रखना कोई ज़्यादा जैसे मैंने आपसे कहा, कोई ज़्यादा हम्म, मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन अक्सर अब क्योंकि सेल्फ केयर, सेल्फ लव ये अब बहुत कॉमन वर्ड्स हो गए, तो लोग कहते हैं, नहीं देखा आपने, अक्सर जो घर में हाउस वाइफ्स होती हैं उन्हें हस्बैंड्स आके कहते हैं तो ये सारा कुछ सेल्फ केयर ही है ना, तो हम्म, नहा रही हो, धो रही हो, खा रही हो, सेल्फ केयर में ही आ रहा है। लेकिन इसमें देखिए, इंटेंशन हम्म, इंटेंशन लेकर करती हैं। ये हम कर रहे होते हैं, ये हम रॉबर्ट्स की तरह कर रहे होते हैं। आपको पता है आपने सुबह सही। को उठना है, नहाना धोना है, कपड़े चेंज करना है, ये करना है, तो वी आर जस्ट डूइंग इट जैसे आपने एक ऑन का बटन
प्रेस कर रही हैं, तो आप उन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर रहे। The same breakfast that you are having with your family, if you stop having it just for the sake of eating, but you think कि अच्छा अब मैं I'm just going, ये नाश्ता तो मैंने फैमिली मेंबर्स के साथ ले लिया, लेकिन ये जो मेरा कप ऑफ टी है ना, I'll drink in, मैं बाहर जाके लॉन में आराम से हम्म इसे पीऊंगी और साथ में नेचर के मजे लूंगी, ये करूंगी, तो बिलीव मी those 5-10 minutes that you are going to spend drinking that mug of tea, it's going to change your day, क्योंकि इससे आपको ये फीलिंग हम्म, होगी कि आज मैंने ये कुछ अपने लिए किया है। वही जो शावर आप रूटीन में ले रही हैं, ठीक है, लेकिन जल्दी जल्दी से ले सही। रही हैं, वही 10 मिनट के बजाय आप 20 मिनट्स ले लेंगी, एंड हम्म इंजॉइंग दैट, यू आर गेटिंग रेडी, और आपने ये करें, तो बिलीव में आपका पूरा दिन ही बदल जाएगा। और जितनी ये चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगी, हम्म, उतनी ही आप रिलैक्स्ड फील होगी, और उतनी ही आपको यानी कि यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग योर लाइफ, एंड यू विल स्टार्ट डेवलपिंग दैट फीलिंग ऑफ पीस। और जो सही। कि हमें ये फीलिंग ऑफ पीस नहीं मिलती, क्योंकि आम दिनों में हम मशीन्स की तरह ऑन होते हैं, और हमें वो एक गिल्ट, ठीक है, फैमिली के साथ होते हैं, फैमिली को एंजॉय नहीं करते, काम पे होते हैं, काम को एंजॉय नहीं करते, तो वो गिल्ट पाइल अप होते 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 यहाँ तक हम्म, पहुंच जाता है कि हमें लगता है कि जिंदगी गुजर गई है और हमें इसमें वो कुछ नहीं हम कर पाए, तो हमें एक फेलियर वाली फीलिंग होती है, और ये फेलियर वाली फीलिंग आपको बिल्कुल अंदर से खत्म कर देती है। आई हैव सो सही। मैनी पीपल्स कमिंग टू मी दैट आर इन देयर लेट 40s 50s, और वो कह रहे हैं हम्म, हमने हमने जो करियर लिया था वो हमने अपनी मर्जी से नहीं लिया था, पेरेंट्स चाहते थे, हमने बहुत सारी चीज़ों हाँ। को इस वजह से एक्सेप्ट किया क्योंकि फैमिली रिक्वायरमेंट्स थी, या आपको पता फाइनेंशियल ज़रूरतों की वजह से हमने ऐसे ऐसे किया, बट अगर मेरे बस में होता तो मैं ऐसे करता। तो ये वाली जो जो आप सही। में फीलिंग आती है ना कि मेरे बस में होता, या अगर मेरे पास कोई टाइम मशीन होती और मैंने कोई चीज़ें वापस करनी होती, तो ये हमें नहीं होनी चाहिए। हम्म, At every different stages of life we have choices to make, ठीक है, और ये हम अपनी अकल से अपने at that time there are different reasons that are going to motivate us to make those choices, हमने उन choices को accept करनी है। जब एक गिल्ट लिंक हो जाते हैं इन choices से, तो वो आपके लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। सही। अच्छा, अगर हम आज ही की फ्राइडे है आज, और आज वैसे भी ब्लेस्ड डे है, तो बात करें आपके अपने बारे में कि व्हाट यू थिंक दैट्स द डे गिव यू वैल्यूएबल, और आप क्या समझते हो कि आज का दिन किस तरह से है आपके अपने हवाले से, कितना इसको वैल्यू करते हैं, अच्छा, सेल्फ जैसे केयर के आपने हवाले से भी। सेल्फ केयर के हम्म, हवाले से, देखिए सेल्फ केयर की पहले जैसे आपने कहा हम बात जी। अगर करें ना, तो सेल्फ केयर में भी डिफरेंट, क्योंकि देखिए सेल्फ केयर जो हम्म, होता है ना वो वेलनेस और वेलबींग से रिलेटेड होता है। जी। वेलनेस और वेलबींग में डिफरेंट चीज आती हैं। इमोशनल सेल्फ केयर आ सकती हैं, स्पिरिचुअल सेल्फ केयर आ सकती हैं, प्रोफेशनल सेल्फ केयर सही। आ सकती हैं। तो जैसे आपने कहा ऑब्वियसली फ्राइडे का दिन हम जी। मुस्लिम्स लोगों के लिए थोड़ा सा स्पेशल जी। होते हैं, तो उसमें देखिए इट कुड बी वेरी सिंपल, शायद आम दिनों में आपको इतना अपनी स्पिरिचुअल पार्ट पे फोकस करने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन जुम्मे का दिन जी। हमारे लिए वो शॉर्टर भी होता है थोड़ा सा, उसमें आप हम्म, 5-10 मिनट जैसे आप नमाज पढ़े, या हो सकता है कि आप दुआ मांगे खुद के लिए। देखिए हम दुआ भी मांगते हैं खुद के लिए, तो हमें बहुत जी। सेल्फिशनेस एक लगता है कि हम खुद के लिए मांगी जा रहे हैं, हम्म, मांगी जा रहा है, तो हम ऐड करते हैं दूसरों को, लेकिन देखिए सही। खुद के लिए पहले आप खुद का ख्याल रखेंगे, खुद के लिए हम्म, मांगेंगे, खुद के लिए एक स्टैंड लेंगे, तो आप दूसरों का भी दिफा कर सकेंगे। देखिए आप जहाज में भी आप ट्रैवल करते हैं, तो जब वो आपको जी। जी। बताते हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी व्हाट यू हैव टू डू, तो उसमें भी होता है पहला ऑक्सीजन आपने अपने ही डालनी होती है, फिर दूसरे की डालनी होती है, क्योंकि अगर सही। आप खुद सांस नहीं ले पा रहे तो आप दूसरे को भी हेल्प नहीं कर सकते। तो ये वही वाला प्रोसेस है। आपने देखिए जैसे आज फ्राइडे है, फ्राइडे जो भी हमें सुन रहे हैं, थोड़ा सा सही। ऑब्वियसली वीकेंड आ रहा होता है, तो अक्सर वीकेंड को हम्म, मोस्ट ऑफ द प्रोफेशंस या फैमिली टाइम थोड़ा सा ज्यादा होता है। उस फैमिली टाइम में अगर आप 1 घंटा आप अपनी फैमिली को दे रहे हैं, उस घंटे में आप 45 अपनी फैमिली को दे दें और 15 मिनट आप अपने लिए निकालें, तो इसमें कोई गिल्ट वाली बात नहीं है। ये जो गिल्ट वाली सही। फीलिंग है वो हमने ख़त्म करनी है, और हमने नियत भी करनी है इस काम की कि हम कुछ कर रहे हैं और हम खुद के लिए कर रहे हैं। मैं अपने लिए एक टाइम निकाल रही हूँ। बेशक देखिए
ऑब्वियसली मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि बहुत शुरू कर लीजिए, 1 घंटा आप एकदम से यहाँ चली जाए, वहाँ चली जाए, नो। स्टार्ट, सेट रियलिस्टिक गोल, आप हर रोज़ पहले 10 मिनट करें, ठीक है? 10 मिनट्स सही। एनी एक्टिविटी दैट यू एन्जॉय। अब हमारा मसला ये होता है कि अक्सर व्हेन आई यूज्ड टू आस्क टू जो मेरे पेशेंट्स होते हैं कि आप मुझे बताएं आपकी हॉबीज़ क्या हैं? वो कहते हैं हॉबीज़ तो बच्चों के लिए होते हैं, इस उम्र में क्या हॉबीज़? ये हॉबीज़ सही। तो उम्र के साथ कोई लिंक नहीं है हॉबीज़ का। हॉबीज़ बहुत, आप एक स्केचबुक लेकर उस पे उल्टी-सीधी चीज़ें बनानी, इट्स अ हॉबी, इट्स फाइन। हम्म। एनीथिंग दैट मेक्स यू फील रिलैक्स एंड दैट मेक्स यू फील दैट गिव्स दैट फीलिंग इन यू कि ये टाइम मेरा है और इसमें मैं जो मर्ज़ी करूँ, ठीक है? ये वाली चीज़ देखिए साइंटिफिकली भी दिखाया जा रहा है कि जब आप सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ करते हैं और जब आपकी ये नीयत बन जाती है, तो आपके ब्रेन्स में ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ हम्म। होते हैं, ऐसे केमिकल्स रिलीज़ हो करते हैं, जो खुशी वाले केमिकल्स होते हैं। सही। तो ये बातें जब हमें साइंस भी बता रही है, हर चीज़ बता रही है, तो व्हाई वी आर नॉट स्टार्ट हम्म। इम्प्लीमेंटिंग दोज़ थिंग्स इन आवर लाइफ? सही। अच्छा जी, लास्ट वर्ड्स आपके, जो आप एडवाइस करना चाहे हमारे जो यहाँ पे जितने भी प्लेटफॉर्म पे लोग हैं, हमें ऑडियंस सुन रही है, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? मेरी एडवाइस है ना उन्हें सारों को ये होगी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी दैट many platforms like Scary Ammi, Chughtai are organizing sessions like that. आपको पता है ये कोविड की सिचुएशंस के साथ ऑब्वियसली देखिए जो स्पेस की हम बात कर रहे थे, वर्क जी। फ्रॉम होम हो गया, बच्चे घर से ही पढ़ रहे हैं, माँ बाप घर से ही काम कर रहे हैं, तो ये स्पेस और टाइम की जो डेफिनेशन हमारी है ना वो सारी मिक्सअप सी हो गई हम्म। है। सही। नो डाउट कि ये चीज़ें थोड़ी-सी मुश्किल हैं क्रिएट करना, लेकिन आप पहले खुद के साथ सोचिए कि आप अपने साथ क्या करना चाहते हैं। और जितना हम्म। हम फ़ोकस अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे करते हैं ना, उतना ही ध्यान हमें अपनी मेंटल हेल्थ पर भी करना चाहिए। हम अक्सर हमें लगता है कि बहुत शायद बुरी चीज़ है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, पागलों वाले हम्म। डॉक्टर के पास जाना, या नहीं ये बुरी चीज़ जी। होती है। आई हैव हर्ड पीपल सेइंग कि मैं आपके पास पहले भी आना चाहता था, लेकिन मुझे मेरे घर वाले कहते हैं तुम तो बहुत नाशुक्रे हो, तुम्हारे पास ये है, हम्म। फिर भी तुम क्या इशू है? तो देखिए ये ऐसी चीज़ नहीं होती, हम किसी को इस तरह से जज नहीं कर सकते, ठीक है? हम्म। हर किसी की अपनी ज़िंदगी है, हर किसी की अपनी स्टोरी है, हर किसी, वी डोंट नो कि किसके साथ क्या कैसे हुआ बचपन में। आपको पता चाइल्डहुड बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं आपकी सही। पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। तो हम्म। शायद आप कई मामलों में ज़्यादा सेंसिबल हो या सेंसिटिव हो एंड एट द अपोज़िट कई लोग कम हो, लेकिन ऐसे कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास एक दफ़ा जा रहे हैं कि आपको बार-बार जाना पड़ेगा। बाज़ दफ़ा वो एक आध हम्म। सेशंस में ही रिज़ॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरह की सही। चीज़ नहीं होती। और दूसरा ये है कि आप अपनी ये जो नफ़सियाती सेहत है उस पर भी उतना ही अटेंशन दें जितना कि आप अपनी सेहत पे देते हैं। अगर सही। आपको लगे सना कि कुछ भी चीज़ अक्सर मैं कहती हूँ अपने पेशेंट्स को कि देखिए कोई भी चीज़, अब बेशक वो नींद का मसला हो जाए, बेशक वो खाने का मसला हो जाए, बेशक वो स्ट्रेस का हो जाए, जो भी चीज़ 1 महीने से ज़्यादा रहेगी ना, वो आपके लिए हम्म। बीमारी बन सकती है। तो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट। एक आध दफ़ा हो सकता है आपको कोई स्लीप हम्म। डिसऑर्डर हो जाए एक लेकिन कोई भी चीज़ जो नहीं सेटल होनी चाहिए वो 1 महीने से ज़्यादा सेटल्ड हो जाए आपके अंदर, ठीक है? वो स्ट्रेस हो जाए, एंग्ज़ायटी हो जाए, दैट मीन्स दैट यू नीड टू बी केयरफुल। तो उसके लिए देखिए देयर इज़ नो हार्म कि आप रीच आउट करें ऐसे प्रोफेशनल्स को जो आपकी मदद कर सके। और दूसरी चीज़ ये है कि आप सीखें कि आपके आसपास, आपके इर्द-गिर्द कौन से लोग सच में दिस आर सपोर्टिंग फॉर यू, दे केयर ऑफ यू। तो आप अपने आप को इन लोगों के आसपास रखिए, और जो लोग आपके लिए टॉक्सिक हो सकते हैं, उनसे आप थोड़ा-सा ना स्टार्ट यू नो creating a space between you and those people. हम अक्सर हमें लगता है कि वो हम्म। कोई आपको मैसेज कर रहे हैं, यू नो देयर आर पोलाइट वे टू रिप्लाई टू समवन कि देखिए आज मैं नहीं कर सकती, आई एम बिजी, मैं मेरा लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है कि मैं आपको बार, तो हमें अक्सर लगता है कि हम ट्रैप हो गए। अब किसी से हमने अगर थोड़ी सी बातचीत करनी है, उसका हमें मैसेज आ रहा है, वी हैव टू आंसर, वी हैव टू, ऐसा कहीं भी नहीं है। देखिए
डिफ़िकल्टीज़ वहाँ आती हैं जहाँ हम बना लेते हैं। आप अपनी ज़िंदगी सही। को सिंपल तरीके से टैकल करें, डिफ़ाइन करें कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, और रीडिफाइन करना ना भूलें, क्योंकि ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी जो ज़िंदगी के गोल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो डिफाइन करने में और रीडिफाइन करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप इन पे काम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आई एम श्योर कि आपकी ज़िंदगी इंशाल्लाह बहुत आरामदेह गुजरेंगी। सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर अक्षा, मुझे आपका थैंक यू जो आज सना। का हमारा सेशन है इट्स वेरी वैल्यूएबल। और आपके थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल थॉट्स, योर शेयरिंग वट एवर यू आर गोइंग टू शेयर विद अस। एंड फॉर द ऑडियंस, thank you so much for over here and support us in the listening. And the second thing, number is mentioned in the description. You can take the appointment with Dr. Aksha as well. और बाकी की जो डिटेल्स है, अगर किसी का कोई कंसर्न है, कोई क्वेश्चन है, कोई इनसे पूछ सकता है। और अंडर द थ्रेड यू कैन ऑल्सो पोस्ट योर कंसर्न्स, वी विल फॉरवर्ड टू डॉक्टर अक्षा। और नंबर इज मेंशन, अगर आप डायरेक्ट भी कांटेक्ट करना चाहें तो यू कैन बिल्कुल। कॉल ऑन द चुगताई कॉल सेंटर। थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर थैंक यू अक्षा, सना। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड एवरीबॉडी।